So we'll start with the next topic, that is gene library. So gene library is nothing but it is a collection of four different DNA sequences that is cloned into the vector, and it is usually done for the ease of purification, storage and analysis. So basically it is a collection of different DNA sequences. अब ये DNA sequences को insert किया जाता है vector में, and why it is done? For the so that it is very easy for their purification, storage and analysis. So there are two types of gene library based on the source from which they are obtained, that is DNA is obtained. एक होता है genomic library और दूसरा है cDNA library. So as the name suggests, genomic library, genome is nothing but total genome or total DNA content of an organism. ठीक है, तो that is genomic library. Now cDNA library is nothing but the complementary DNA और cDNA it is obtained from by using mRNA. Now यहाँ पे reverse transcription का usually use किया जाता है. ठीक है, well हम लोग को डिटेल में पढ़ेंगे. Now अभी जीन लाइब्रेरी में क्या होना चाहिए? यूजुअली इट कंटेन्स नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, और क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमको पर्टिकुलर सीक्वेंस चाहिए, और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी विद विच वी कैन गेट दैट सीक्वेंस. दिस प्रोबेबिलिटी या नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग फॉर्मूला n इज इक्वल टू ln log 1 माइनस पी डिवाइडेड बाई ln 1 माइनस एफ. यहाँ पे जो n है इट स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स. रिकॉम्बिनेंट्स इज नथिंग बट vector which contains the foreign DNA or DNA of our interest. ठीक है, it can be calculated, that is कितने number of recombinants हम calculate कर सकते हैं by using ln1 minus p divided by ln1 minus f, where p here it is the probability with which that particular sequence is available and f is nothing but fraction of genome in that one particular insert. ठीक है, now हम पढ़ेंगे about genomic library. So genomic library is nothing but, genome is nothing but total DNA content of an organism. So genomic library क्या होगा? It is a collection of clone that represents complete genome of an organism. So ये वो clones का copies का collection है जहाँ पे या जो represent करता है organism का total DNA content और genome is nothing but the genomic library. Now these genome or fragments they are inserted into the vectors and then they are introduced into the host cell और उसका further propagation होता है. Now this constitutes genomic library. Genomic library is nothing but collection of clones that represents the complete genome of an organism. ठीक है, now this genomic library they are very large क्योंकि पूरा DNA content है organism का, so that library is very large. Now why it is very large? Because it contains coding regions, exons, non-coding regions, introns, junk DNA, regulatory elements सब present होते हैं organism में. ठीक है, उसके genome में. Therefore these genomic libraries are very large. Now because they are large, therefore they are constructed by using high capacity vectors. Now हमको क्या करना है? ये जीनोम को इंसर्ट करना है वेक्टर में in the form of fragments, but the vectors which we are using for inserting the foreign DNA it should be large because the genome of an organism is in large amount. So therefore they are constructed by using high capacity vector. Usually cosmids, bacterial artificial chromosome and yeast artificial chromosomes are used for the purpose of construction of genomic library. So अभी जो cosmids होते हैं, cosmid were the first vectors जिसको यूज़ किया गया था फॉर दिस पर्पज, दैट इज जीनोमिक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट करने के लिए. अब यूजुअली इनके इंसर्ट साइज डिफरेंट होते हैं. इंसर्ट साइज इज नथिंग बट कितना फॉरेन डीएनए हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज नथिंग बट द इंसर्ट साइज. इट रेफर्स टू फॉरेन डीएनए दैट कैन बी इंसर्टेड इन टू दैट पर्टिकुलर वेक्टर. तो जो कॉस्मिड्स होते हैं उनका इंसर्ट साइज 45 किलो बेस पेयर होता है, मतलब 45 किलो बेस पेयर तक जो फॉरेन डीएनए है आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो. Then bacterial artificial chromosome its insert size is 125 kilobase pair, and each artificial chromosome it has the highest insert size of about 300 kilobase pair. ठीक है, now हम देखेंगे various steps जो इन्वॉल्व होते हैं द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस जीनोमिक लाइब्रेरी. तो हमको जीनोमिक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए हमको जीनोम चाहिए. तो फर्स्ट स्टेप विल बी दी आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए. नाउ जीनोमिक डीएनए हमको आइसोलेट करना है. नाउ कौन सा पार्ट प्रेफर करेंगे हम डीएनए आइसोलेट करने के लिए, दैट इज द क्वेश्चन. सो इवन दो जो टोटल डीएनए कंटेंट है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में पूरी सेम है, पूरी तरह सेम है, and all the tissues that provide the DNA, but there are some tissues that readily provide the genomic DNA as compared to others, and therefore that tissue is usually preferred for isolation of genomic DNA. So usually liver prefer करते हैं in case of animals क्योंकि readily provide करता है genomic DNA. अब एक ऑर्गेनिज्म है उसका कोई भी आप पार्ट से डीएनए आइसोलेट कर लो, द डीएनए विल बी सेम. ऐसे नहीं है कि एक ऑर्गन में अलग होगा दूसरे में अलग,
दैट्स नॉट द केस. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप इज द आइसोलेशन. आइसोलेट कर लिया. नाउ सेकंड इज फ्रैगमेंटेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए. एक बार आइसोलेशन हो गया, नाउ आप पूरा का पूरा जीनोम तो वेक्टर में इंसर्ट नहीं कर सकते हो. ठीक है. सो then this should be fragmented. Now fragmentation के दो तरीके, एक तो mechanical fragmentation can be used और second is the partial restriction digestion. Now mechanical fragmentation में क्या होता है, usually shearing force, physical shearing force apply करते हैं. ठीक है. Now if mechanical fragmentation is used for the fragmentation of genomic DNA, then it usually produces varying fragments of varying length. अलग अलग लेंथ के फ्रैगमेंट्स मिलेंगे बट दे आर ऑफ ब्लंट इन नेचर. अब ब्लंट एंड्स क्या होते हैं? Now usually blunt ends are nothing but fragments, that is दोनों जो strands है they will be same, that is they will be of same length. It means they are blunt ends. Now उसका अपोजिट होता है sticky end या cohesive ends. sticky और cohesive ends क्या होते हैं? they are single stranded overhangs. मतलब एक एंड जो होता है बहुत लंबा होता है, दूसरा जो होता है वो बहुत छोटा होता है. So short, one end is short, another is long. they are on a sticky end और cohesive ends. और दूसरे होते हैं ब्लंट एंड, जहाँ पे दोनों फ्रैगमेंट्स या दोनों स्ट्रैंड्स का जो लेंथ है इट विल बी ऑफ सेम. सो व्हेन मैकेनिकल फ्रैगमेंटेशन इज डन इट विल प्रोड्यूस द फ्रैगमेंट्स ऑफ वेरिंग लेंथ बट ब्लंट एंड सेगमेंट्स आर जनरेटेड. व्हेreas जब पार्शियल रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन यूज करते हैं, पार्शियल रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन इज नथिंग बट बाय द यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. सो यूजुअली जो 4 बेस पेयर कटर्स और 6 बेस पेयर कटर्स होते हैं, restriction enzymes, they are used for this purpose. And when these restriction enzymes are used, in that case it will produce uniformly sized fragment जो होंगे सेम साइज के होंगे बट दे आर ऑफ स्टिकी एंड, दैट इज सेम लेंथ के होंगे बट स्टिकी एंड्स मतलब उन लोग में सिंगल स्ट्रैंडेड ओवर हैंग्स प्रेजेंट होंगे. मतलब वन एंड इज शॉर्टर अदर इज लॉन्गर. ठीक है. अब ये बात होगी फ्रैगमेंटेशन की. नाउ हमने आइसोलेट कर लिया उसको पीसेस, दैट इज डीएनए जीनोम के फ्रैगमेंट्स बना लिए. नाउ सेकंड इज हम लोग इलेक्ट्रोफोरेटिक, दैट इज अपनी इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ाई, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी प्रैक्टिकल में भी देखा होगा. क्या करते हो, अगारोस जेल पर आप पर्टिकुलर डीएनए फ्रैगमेंट्स रन करोगे. ठीक है. नाउ व्हाई इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन इज नीडेड फॉर द फ्रैगमेंट्स दैट आर आइसोलेटेड, सो दैट वी कैन select particular fragment that can be inserted into the vector. So for that purpose electrophoretic separation is done on the agarose gel, so as fragments of appropriate size can be selected for the insertion into vector. Now एक बार फ्रैगमेंट सिलेक्शन भी हो गया जिसमें इंसर्ट करना, और नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, ये जो डीएनए फ्रैगमेंट है ये फॉरेन डीएनए है जो हमने आइसोलेट किया है, इट इज देन इंसर्टेड इनटू द वेक्टर. वेक्टर कैन बी कॉस्मेट्स, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या फिर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. ठीक है. नाउ नेक्स्ट मेथड इज ट्रांसफर. ये फॉरेन डीएनए को हम ट्रांसफर करेंगे वेक्टर में. ठीक है ना. उसके लिए दो मेथड्स हैं, या तो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड इट इज़ यूजुअली डन इन केस ऑफ बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन. दैट इज ये क्यों कर रहे हैं मेथड्स, फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, सॉरी फॉरेन डीएनए को एक बार हमने इंट्रोड्यूस कर दिया वेक्टर में. अभी जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर फॉर्म हो गया है, हम क्या करेंगे, दीज रिकॉम्बिनेंट वेक्टर शुड बी इंसर्टेड या शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल, ताकि जब होस्ट सेल का प्रोपोगेशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है इसका भी मल्टीप्लिकेशन हो. ठीक है. So next step is nothing but the introduction of the recombinant vector, that is vector containing foreign DNA into the host cell. Now two methods are there for this introduction. Transformation usually use करते हैं for bacteria, और जो transfection method है use करते हैं in case of viruses, phages. ठीक है. No, आप ये method already पढ़ चुके हो, transformation, transfection and conjugation and so on. ठीक है. नाउ अब इंट्रोडक्शन भी हो गया होस्ट सेल में. नाउ उसके बाद क्या करेंगे, नाउ नेक्स्ट मेथड इज द सिलेक्शन ऑफ पॉजिटिव क्लोन्स. पॉजिटिव क्लोन्स आर नथिंग बट ये वो कॉलोनीज होते हैं जिसके अंदर फॉरेन डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए हैज़ बीन इंट्रोड्यूस. हमको पता तो होना चाहिए कि हमने जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इंट्रोड्यूस किया है वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है भी नहीं, बिकॉज एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफेक्शन इज़ वेरी लो. सो इट इज़ नेसेसरी टू select the positive clones containing the recombinant vector with foreign DNA. So again उसमें दो techniques है, that is colony hybridization and PCR. Now you will study this in the coming classes. Okay. PCR is nothing but polymerase chain reaction. So this is done for the identification or selection of positive clones. Now एक बार identify भी कर लिया हमने, identify कर लिया कि कौन से positive clones मतलब है कि नहीं उसमें present. और next ये हम लोग क्या करेंगे,
अरेंज करेंगे पॉजिटिव क्लोन्स को स्पेसिफिक ऑर्डर में. नाउ इट इज़ डन बाय टेक्निक नोन एज क्रोमोसोम वॉकिंग. हम इसमें क्या करते हैं, the colonies they are arranged based on their hybridization with probe. that is उन लोग को प्रोब के साथ, प्रोब इज नथिंग बट द नोन सीक्वेंस ऑफ डीएनए. उसको हाइब्रिडाइज करते हैं हमारे डीएनए के साथ. अगर हाइब्रिडाइजेशन मतलब किस बेसिस पर उसका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ऑन दैट बेसिस इट इज अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. दैट इज नोन एज क्रोमोसोम वॉकिंग. सो नेक्स्ट स्टेप इज द अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव क्लोन्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर. एंड द लास्ट स्टेप, एक बार अरेंजमेंट हो गया उसको हम लोग स्टोर करेंगे एट लो टेम्परेचर. So these are the steps for the construction of genomic library. First the isolation of genomic library, second is fragmentation, उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन. एक बार सेपरेशन हो गया तो सिलेक्ट कर लेंगे फ्रैगमेंट ऑफ सूटेबल साइज, इंसर्ट करेंगे वेक्टर में. ये वेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे होस्ट सेल के अंदर, इसका प्रोपगेशन होगा. विल आइडेंटिफाई दैट पॉजिटिव क्लोन्स और सिलेक्ट दी पॉजिटिव क्लोन्स जिसके अंदर फॉरेन डीएनए दैट इज रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इंट्रोड्यूस्ड है. उसके बाद में हम जो हमने पॉजिटिव क्लोन सिलेक्ट कर लिया उसको स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे by chromosome walking. And next is storage at low temperature. ठीक है. And this genomic library readily it provides any genomic DNA which is required for the expression and analysis. जब भी ज़रूरत पड़ती है ये readily provide करता है आपको कोई भी source because it is arranged in a specific order. So this is nothing but the genomic library. Now अब second है cDNA library. We'll discuss it in the next class क्योंकि अगर आप एक साथ अगर हम पढ़ेंगे we'll get confused. So it is very easy and it is also important from the exam point of view. Okay, thank you.